the Department of Political Science at Maulana Azad National Urdu University. This program is one of the most sought program you must have seen. Many of you must have seen in the past that Meet the Author is a series that center in the department has been hosting for over the past few years. Today we have very prominent speaker, prominent author, and one of the most dynamic civil servant who reformed the Election Commission of India, will be talking with us on his book, The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India. Before that, I would also introduce all of you that we have another colleague and very dynamic scholar, Professor Afroz Alam, who is heading the Center and the Department of Political Science both. At the moment, he has been one of the speaker talking in the area of civil society discourse, democracy, etc. I also welcome Professor Afroz Alam, other colleagues from the center, Dr. Abdul Taha, Muzaffar, Shabana Farheen, Dr. Nageswar, and all of you, including Arsana Sahab, who is here with us. We have a large number of people who would be joining and who joined this event. Because of this COVID and online event, we also have people who are joining from Facebook Live. We are going to have. I request all of you that in case in between there are some few questions in your mind, I would request that you put up in the question answer or at the end of the session when Professor Afroz Alam, who would be moderating this session, would invite to have it. Uh, Before I hand over to Professor Afroz Alam to begin this, let me quickly introduce Dr. Qureshi. That Qureshi Sahab was one of the strong civil servant who was chairing this Election Commission of India. He was 17th Chief Election Commission on 30th July 2010. He joined as he. Apart from this, many of us must have seen his few other books like An Undocumented Wonder, The Making of the Great Indian Elections, that describe the enormous complexity of Indian elections. We also have very interesting coffee table books, which we can refer of Old Delhi Living Traditions, which was published few years back. In fact, we also find somebody who is with us who was in 2011 as one of the 100 most powerful Indians. And again in 2012, he was listed in this group. He has been all through in all forums where we have dialogue on the issues of democracy, public policy, and issues of citizenship in the country. Having Dr. S.Y. Qureshi at Maulana Azad National Urdu University is a privilege for all of us. Welcome you, sir, for this debate. So we welcome you on behalf of the entire university and both the department. I request Professor Afroz Alam to take over and then we can start this program. Welcome everyone here again. Thank you, Dr. Zia. And I'll take this opportunity to introduce that what this program is all about in just quite a short time. Meet the Author series is one of the initiatives of the center I'm heading and the department, both I'm chairing as well. The initiative was why not to invite the author themselves so that he or she would be able to discuss what he has written in the book. The purpose was to cultivate a reading habit amongst the future generations of the country. They must know what is being written, because if you are not having a habit of reading books, you will not be able to have a grasp of what other people are thinking about, what the country is moving on, what are the issues. So one should have the privilege to understanding the mind of the author directly from his own tale of his own book which he has authored. So the point is, let my student, the participant of this program, should be having a preliminary introduction of a book who has been the result of years of hard work and labor. And the issue was to invite the author themselves. And in that regard, we were of great success. This is the 6th series of Meet the Author series. We have invited 5 authors earlier. And in the next series, around 10 authors are already are scheduled in different dates. So I'm quite happy that when I asked
S.Y. Qureshi sir, we want to have a discussion on your book. In first go, without indulging into that, what is the program, when is the program, he said that, give me the dates, I am ready for the programs. And he was so kind and generous, as he has always been, for us, for the university, for us, and personally we. So it was a great thanks for him to accept our invite to be a part of this Meet the Author series. That is the sixth one. Of course, why this book discussion on the latest writing? Lots of controversy it has generated. You know that a book which is demolishing the 1,000 years of the myth cherished by certain people. That, yeah, I wrote a book. I wrote articles on in 2015 arguing on the whole population jihad, a campaign launched by many people in the country, that saying that hum paanch hum or hamare 25 these are the naras of certain communities, the certain myths which are being cultivated in such a way that it should appear quite genuine in the larger minds of the majority. Those myths needed a due research, certain empirical findings, and that was been done. And I'm quite happy that when I was going through the latest book by Dr. S.Y. Qureshi, The Population Myth, Islam, Family Planning, and Politics in India, I was quite happy on certain empirical details which we were not aware of, despite having much interest in those areas which are already been in circulation in the society for particular propaganda, for certain purposes. So idea is that, fine, when I was having that, it's a very handy book, and written in 256 pages by a very fine publisher, Collins India, and in a very affordable price. Anyone could have it so easily. So the idea is, one aspect, that can I read the book, can I buy the book, whether it is lengthy or not. No, these are very in a very easy to understand method. Anybody could read. No language jugglery is being used, no idioms and phrases. It's quite easy and direct communicative methods. I was so thrilled to read it. I started with the first paragraph, that is the line ended with in one go, and I felt very enriched in terms of knowledge, in terms of facts, in terms of interpretation, in terms of perspectives which were quite potential enough to demolish the cultivated myth over the years. So that was the charm for me, of that how to go about it. And imagine a situation: a person like S.Y. Qureshi is writing a book on population myth, and particularly a myth about a Muslim community producing children, that is, they have no control on it, was quite interesting. And then people started looking after what is written in it. I was of the similar view, that a person who was the chief election commissioner, a person was of an officer of a great repute in India. So many occasions, his books, which Zia has just reminded us, the undocumented wonder, was of great help to me in developing my own ideas about election commission. So those were of great. So idea is that this book is written with a detailed research of years of time, and it's exactly 9 chapters. There are 9 chapters. There is one introduction, a very smart introduction written in it, and two important points to note. One is that is the forward by two different people. One is Devendra Kothari, and the selection of a person to write a forward by a scholar like Devendra Kothari, who is known as population and development analysis, means that a person who has devoted his time to understand the population is, and the other person on the other side, a person who is trying to demolish myth, having certain linkages, means a person is not writing in vacuum, but with the whole grounding of those people who have devoted their time for population research. Second point is that who is the second forward? There is two forward. Is another by is Tahir Mahmood, because the Dr. S.Y. Qureshi was dealing with a subject which has certain linkages with Islamic laws and with Islam per se. So he may be having in his mind that he will be asking a person who has devoted his time to understand Muslim personal laws over the years,
are known as a legal luminary, come out with a forward. He must have read the books. So the two population expert and the Muslim personal law both are combined their insights while dealing with the very controversial topic called population explosion of the whole idea is that the Muslim is a community who are in a habit to produce more and more number of children, so that there will be a time they will be able to rule over the country. They will be such a bigger size. They are the one who come out with the who do not go with the idea of family planning. They are conservative. They do not go with go with the modern techniques of controlling the whole reproductive ability. They are the reasons. So the family planning, the rising number of the children, and those are the things which were already in circulation in the society that need to be dealt seriously, empirically, with lots of facts and data. So if I personally felt that this book was a great success in terms of generating debates in the country. Know that you have to question your or own knowledge base which are there as a myth. So this book is really was of great help to me, and it will be a great help to all those who will go through this book. Certainly. So with this, I needed that the author himself to join us to come out that what was the things in his mind to write this book, why this issue in his mind, and the point is that what kind of labor and the nitty-gritties of the research tools he may have used, what way forward he may suggest for the country, for the people, and for the community. So listening from the author themselves will be of great help to all of us. Thank you, S.Y. Qureshi sir, for joining us. So over to you that the entire, can you tell us the summary about all this book, and then we will come out with certain new ideas. Thank you, sir, for joining. Thank you very much, Professor Alam. I would prefer to speak in Hindustani if you don't mind. Yes, sir. Please. Yeah. You know, ये किताब 1995 में बड़े एक्सीडेंटली शुरू हुई. मुझे उस वक्त I was joint secretary in the Ministry of Youth Affairs when country director of UNFPA came to see me. He was a Canadian, white Canadian, and he had seen my work as a communication person. So very briefly, so उन्होंने कहा, Mr. Qureshi, can you please write a strategy paper for us for family planning among the Muslims? Implication was कि मुसलमानों में family planning कम होती थी, और तो क्यों कम होती है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये उनकी मंशा रही होगी. So I was quite taken aback because I was not an Islamic scholar then. I'm not an Islamic scholar even now, but I did study Islam for this book. And secondly, I had never worked in family planning ministry department. Of course, when we were in the field, first as SDM, मेरे बॉस यहाँ पे अस्थाना साहब मौजूद हैं. हमारे उस जमाने में 73 से 75 तक में था, तो हमारे फैमिली प्लानिंग टारगेट हर जिले के लगते थे कि वेजेक्टमी पे ट्यूबेक्टमी कराओ. और उसके बाद मैं गुड़गांव का डिप्टी कमिश्नर लगा, वहां पे भी टारगेट होते थे. लेकिन जब तक इमरजेंसी हो चुकी थी, इमरजेंसी का बैकलैश था, फैमिली प्लानिंग की बात करनी भी बंद हो गई थी. तो लेकिन जो रियल फोकस था वो 73-75 में हमने वो उतनी ही देखी थी बस. लेकिन जब इन्होंने कहा कि साहब आपको हम एक कंसल्टेंसी ऑफर कर रहे हैं 1 महीने की, आप ये पेपर लिख दीजिए. अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर थी. 1.5 लाख रुपए वो मुझे दे रहे थे, और वो आज मामूली रकम लगे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी सैलरी 5,000 रुपए थी. तो लेकिन मेरे एक अंदरूनी आवाज ने ये कहा कि मुझे ये कुछ सेंसिटिव सब्जेक्ट हो सकता है, इस पे मैं इसको फ्री करूंगा. तो जब मैंने उनको कहा कि साहब मेरी ये शर्त है कि मैं इसको फ्री करूँ, प्रो बोनो करूंगा, तो वो बड़े हैरान हुए. साहब हमारे पास तो लोग प्रेशर लेके आते हैं, सिफारिश लाते हैं, और आप कह रहे हो आप पैसे नहीं लोगे, और हम तो किसी से मुफ्त काम लेते नहीं, हम तो जरूर रिवॉर्ड करते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा. तो मैंने कहा ठीक है, आपका इतना इसरार है तो मैं 1 रुपया ले लूंगा. तो अब 1 रुपया हो या 1 मिलियन रुपए हो,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हमारे सिविल सर्विस के रूल्स हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने हिंदू को कहा कि आप मुझे चिट्ठी लिखिए फॉर्मली, मैं भारत सरकार की इसमें परमिशन लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या इसमें नतीजा निकल के आने वाला है। और चुनाचे ये हुआ, उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैंने परमिशन ली, हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। 5 महीने लगे मुझे बजाय 1 महीने के, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ छुट्टी नहीं ली थी, अपने जो जॉब थी जॉइंट सेक्रेटरी वाली उसके साथ साथ मैंने इसको की। लेकिन इस स्टडी ने मेरे दिमाग के दरवाजे खोल दिए, और कुछ मिथ जो मेरे दिमाग में भी थे, और वो उसकी वजह ये हो सकती है वो कि 50-60 साल से ये प्रोपेगेंडा हम सुनते चले आ रहे थे कि मुसलमान फैमिली ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके जिम्मेदार हैं, इनके बहुत बच्चे होते हैं, इनकी बहुत बीवियां होती हैं, चाहे वो जो हम 5 हमारे 25 यानी हर मुसलमान की 4 बीवियां और 20 बच्चे या 40 बच्चे होते हैं। और ये तो हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुना है, और रिसेंटली तक सुना है। जैसे 4 दिन पहले एक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिलता है पर हेड, तो आपको सिर्फ 10 किलो मिलता है। किसने आपसे कहा कि आप 20 बच्चे पैदा ना कीजिए? 20 बच्चे अगर आपके होंगे तो आपको 1 क्विंटल अनाज मिलेगा। उनका रेफरेंस बड़ा सरकास्टिक और बड़ा क्लियर था। तो मैंने किताब में यही कहा है, बेशक वो 20 बच्चे पैदा करें, बहुत अच्छी बात है, 1 क्विंटल अनाज ले लें, लेकिन मुसलमानों को मैंने अपील की है कि आप इस झांसे में ना आना, आप इसमें न पढ़ना, और आप फैमिली प्लानिंग जरूर करना। खैर, लेकिन अब ये जो किताब का टाइटल है द पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये मैं एक्सप्लेन करूं कि 4 मिथ हैं, जो बल्कि 5 मिथ जो मैंने एनकाउंटर किए। पहला मिथ तो मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह तक कि वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ इंडिया के जिम्मेदार वो हैं। दूसरा मिथ ये कि जो डेमोग्राफिक बैलेंस है डिफरेंट कम्युनिटीज का, वो इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, यानी मुसलमान बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू बहुत तेजी से घटते जा रहे हैं। तीसरी मिथ जो क्रिएट किया गया कि ये ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है, जानबूझ के मुसलमान ऐसे कर रहे हैं ताकि वो हिंदुओं से ज्यादा उनकी गिनती हो जाए, उनके वोट ज्यादा हो जाए, और वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लें। ये आए दिन का डिस्कोर्स है। और चौथा मिथ ये था कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग अपना बर्थ रेट बढ़ाने के लिए 4-4 बीवियां करते हैं ताकि उन सबसे बच्चे हों, 10-10 बच्चे हों, वो 40 बच्चे पैदा कर सके। तो ये जो स्लोगन हम 5 हमारे 25 या हम 4 हमारे 40, ये उससे निकला है। और ये एक मिथ जो मुसलमानों में था और जो नॉन मुस्लिम में भी था कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग की ममानियत करता है, इस वजह से मुसलमान इसकी मुखालफत करते हैं और फैमिली प्लानिंग नहीं करते। इन 5 को मैंने इस किताब में डील किया है। क्या हकीकत है? फैक्ट ये है कि मुसलमानों का बर्थ रेट हाईएस्ट है, नो डाउट, लेकिन उससे इंप्रेशन जो ये क्रिएट किया जाता था कि जैसे हिंदू फैमिली में अगर 2 बच्चे हो रहे हैं तो मुसलमान फैमिली में 10 बच्चे हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत निकला। ये पाया गया कि हिंदू और मुस्लिम में बर्थ रेट में कभी भी डिफरेंस 1 बच्चे से ज्यादा का नहीं था। अगर वो हिंदू फैमिली में 4 थे, मुसलमान क्या 5 थे, मुसलमान क्या 5 थे, तो हिंदुओं में 5 थे तो मुसलमान के 6 थे। 1 से ज्यादा डिफरेंस कभी भी नहीं था। और वो भी अब घट के 0.48 यानी आधे से ज्यादा 0.5% से भी नीचे आ गया, 0.48 पे आ चुका है। क्योंकि ऑल्दो मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम थी, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने पिछले 30-40 साल में पिकअप किया, हिंदू ज्यादा प्लानिंग को पिकअप किया, इसी वजह से गैप कम होता है। मैंने कोई ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी कहीं ये नहीं देखी कि मेरे को और दिखाते हैं भाई। मेरा सदस्य पता ही नहीं राशि म्यूट कर कोई चाहिए कि ताकि वो ये ना हो कि मुसलमान उनको ओवरटेक कर ले। ये सारे मैंने चैप्टर 8 है जो पॉलिटिक्स में है, उसमें सबको लिस्ट किया है, सबको साइट किया है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कह रहा हूँ,
इस किताब में कोई फैक्ट, कोई फिगर ऐसा नहीं है जो सरकारी सोर्सेज से नहीं हो, या सेंसस, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 4 सर्वेज हो चुके हैं, 5वां अभी हो चुका है लेकिन अभी उसके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। तो लेकिन इन 4 सर्विस, फिर ये जो फैमिली, ये जो 4 बीवियां वाला जो था, क्या वाकई पॉलीगेमी में भी इटसेल्फ में 3-4 मिथ शामिल हैं। एक तो सबसे पहला तो मिथ ये है कि मुसलमान सबसे कम पॉलीगेमी प्रैक्टिस करते हैं, और ये भारत सरकार की फिगर है। भारत सरकार ने एक ही स्टडी कराई थी 1974-75 में, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कमेटी। उसमें कम्युनिटीज में पॉलीगेमी है, सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी में 15.25%, फिर जैन, फिर बुद्धिस्ट, फिर हिंदू 5.8, मुस्लिम 5.7, सबसे कम देख के पढ़ के। फिर मैंने देखा कि क्या ये फ्रीक फिगर है, वन ऑफ फिगर है, और क्या यह ट्रेंड। तो मैं पीछे गया 1931 और 1961 तक के सेंसस की फिगर, और ये पाया कि हर सेंसस में यही ट्रेंड थी कि सभी कम्युनिटी में पॉलीगेमी थी, लेकिन मुसलमानों में सबसे कम थी, और ऑफ कोर्स सभी में थोड़ा कम भी होती जा रही थी। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान पॉलीगेमस हैं, इससे ने निकाली है कि अगर पॉलीगेमी करते ही नहीं है तो हम अपने इस इश्यू लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाते हैं। इस पे अगर बैन लगता है, या बैन लगाने की बात हो, बल्कि हम खुद ही डिमांड कि जो हम करते ही नहीं है तो बैन लग जाए, क्या रहा है। 22 मुसलमान कंट्रीज में ऑलरेडी चीज पे बैन है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमान के खिलाफ जो नफरत का माहौल और नफरत की जो सारी प्रोपेगेंडा है, उसकी बुनियाद ये है कि मुसलमान की प्रिज्यूम 4 बीवियां, बल्कि किसी ने तो ये कहा कि भाई जलसी भी होती है कि ये तो 4 कर लेते हैं, 2 भी नहीं कर सकते। तो बट दैट इज मोर इन ए लाइटर वेन। बट फैक्ट ये है कि ये फसाद की जड़ और हेट कैंपेन की जड़ ये है। तो उसकी हमें हकीकत में जाना जरूरी था कि अगर हम सबसे कम पॉलीगेमस हैं तो हमें पॉलीगेमी पे बैन अगर लगने की बात हो तो उसको मान लेना चाहिए। दूसरी चीज इसमें मैंने कही है कि एक्चुअली इंडिया में पॉलीगेमी पॉसिबल ही नहीं है, स्टेटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे बॉस अस्थाना साहब यहाँ बैठे हैं, ही वाज सेक्रेटरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, और खुद स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो ये ही विल बेयर मी आउट कि स्टैटिस्टिकली इंडिया में पॉलीगेमी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की जेंडर रेशो एडवर्स है अगेंस्ट वुमेन फॉर द लास्ट 100 years। यानी 1000 मर्दों के मुकाबले में 1000 औरतें होनी चाहिए, लेकिन 920, 925, 930, 940 ये रेंज में हमेशा रही हैं। और पिछले साल तो 924 पे आ गई थी। 924 औरतें हैं 1000 मर्दों के लिए। यानी अगर मैं दूसरी शादी करने के लिए निकलूं तो मुझे वो दूसरी औरत मिलेगी कहाँ से, जबकि हर मर्द के पास एक औरत नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि 922 औरतें ही हैं, 924। तो बल्कि मैंने एक चीज कही है जो सुनने में जोक लगती है, लेकिन स्टेटिस्टिकली बड़ा सीरियस है, कि हिंदुस्तान में किसी भी मर्द की पूरी एक बीवी नहीं है, 0.9 वाइफ है। दैट इज स्टैटिस्टिकल ट्रूथ। तो ऐसी सूरत में ये कहना कि जी हर मुसलमान के 4 बच्चे 4 बीवियां होती हैं, ये कैसे मुमकिन है। तीसरी चीज इसमें कि पॉलीगेमी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ये भी समझने की बात है कि ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद है। स्टडी ये दिखाती हैं कि अगर सिर्फ एक औरत की एक ही बीवी है तो उससे 5 बच्चों की अगर एवरेज है, तो दूसरी बीवी अगर वो कर लेगा तो उससे एवरेज दूसरी बीवी के बच्चे सिर्फ 1.7 होंगे। यानी अगर 2 औरतें 2 घरों में जाएंगी तो 5 और 5 10 बच्चे पैदा करेंगी। और अगर 2 औरतें एक ही घर में गई तो पहली ने 5, दूसरे ने 1.7, तो 6.7। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए तो थोड़ी बहुत पॉलीगेमी अगर है तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए तो अच्छी चीज है ना। चौथा जो इस पॉलीगेमी का मिथ है वो मुसलमानों में है। मुसलमानों में मिथ क्या है कि कुरान में इस्लाम ने परमिशन दी है पॉलीगेमी की, और लेकिन एक कंडीशन है कि बराबरी करना। मैं कहता हूँ ये भी मुसलमानों की इसमें ना समझी है कि कंडीशन एक नहीं है, कंडीशन एक्चुअली 2 है, दूसरे की कोई बात ही नहीं करता। और वो मैं आपको समझाता हूँ कि कुरान शरीफ में एक ही आयत है जिसमें पॉलीगेमी में जिक्र है कि तुम
2 या 3 या 4 शादियां कर लेना। अब मैं दौड़ के दूसरी तीसरी और चौथी के लिए कूद पड़ूं, चल निकल पड़ूं, पूरी आयत तो मैंने पढ़ी नहीं। उस आयत में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम उनमें से 2 या 3 या 4 से शादी कर लेना, लेकिन ये शर्त है कि सबके साथ तुम एब्सोल्यूट इक्वालिटी करो, जो बड़ा मुश्किल काम है। ओनली इफ यू आर श्योर कि आप इक्वालिटी कर सकोगे तो तुम 2 या 3 या 4 कर लेना, और अगर नहीं कर सकते तो फिर एक ही करना। तो आमतौर पे जो उलमा भी इंटरप्रिटेशन देते हैं कि देखिए, एक तो ये इंजंक्शन नहीं है 2 शादियां 3 शादियां जरूर करनी है, बल्कि ये परमिशन है। क्यों उस जमाने में बेइज्जती कर लिया करते होंगे, लेकिन जाहिलिया के जमाने में, लेकिन इस्लाम ने रिस्ट्रिक्शन कर दी कि नॉट मोर देन 4 एंड सब्जेक्ट टू इक्वालिटी। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है कि ये जो आयत थी यह यतीमों की बात कर रही थी, और यतीमों की बात में अल्लाह ये फरमा रहा है इसमें कि तुम उनके साथ ज्यादती न करना, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प न कर लेना, उनकी अच्छी चीज को हड़प करके अपनी बुरी चीज से सब्स्टिट्यूट न कर लेना। और सबसे ज्यादा इंसाफ की बात और अच्छी बात तो ये होगी कि तुम उनमें से, उन यतीमों में से 2 या 3 या 4 शादी कर लेना। अब मैं दूसरी करने निकलूं तो मैं वर्जिन की तलाश में निकलता हूं, न कि एक ऐसी औरत जिसके जो विडो हो और उसके 3, 4, 5 बच्चे हों, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो इसका मकसद था इस आयत का, वो तो उसी को मिल सकती है जो विडो है और बच्चों वाली है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये तो भूल जाते हैं, क्योंकि बड़ी आयत क्लियर है, उसमें से लिखा है उन यतीमों में से तुम 2 या 3 या 4। तो इसकी तो कोई बात हमने किसी मुसलमान किसी आलिम के मुंह से सुनी ही नहीं, तो ये हमारी तरफ से इसमें कोताही है जो जिसको हमें समझना चाहिए ना। अब जो ये पॉलीगेमी वगैरह के जो मिथ्स हैं, उसमें जैसे मैंने बताया कि मुसलमानों की बर्थ रेट हाईएस्ट है, लेकिन एक बात जो नहीं कही जाती कि सेकंड हाईएस्ट किसका है, वो हिंदूज का है, बिल्कुल थोड़ा क्लोज बिहाइंड। मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टेंस 54% है, तो हिंदूज में 45% है। अब आप इसको कंट्रास्ट कीजिए कि सिखों का 80% है, 80% सिखों के मुकाबले में 54% हिंदू, तो बहुत कम हुए ना उनका फैमिली प्लानिंग। पिछले दिनों अभी मेरा एक इंटरव्यू एक फे डिसूजा नाम की फेमस टीवी जर्नलिस्ट ने किया। उसने अपनी उसमें बताया कि पिछले इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में फैमिली प्लानिंग को पेट्रियोटिज्म से जोड़ दिया। जो नई बात नहीं, मैंने अपनी किताब में भी उसका जिक्र किया है, क्योंकि ये राइट विंग का डिस्कोर्स में ये शामिल है। उन्होंने कहा कि जिनके बच्चे कम होते हैं वो बड़े पेट्रियोटिक हैं। इसका मतलब है जिनके सबसे ज्यादा होते हैं वो बड़े अनपेट्रियोटिक हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो की बात क्यों नहीं करते और some audio problem at your end. Is it now better? Yeah, better, sir. हाँ, ना इसमें कि अगर सिखों को में 80% फैमिली प्लानिंग है, तो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक तो वो हुए, और उनकी पेट्रियोटिज्म पे भी शक जाहिर किया जा रहा है। उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो हमें ये जो इस किस्म की जो वह है बेवकूफियां हैं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा और फैक्ट्स लोगों के सामने आने पड़ेंगे ना। दूसरा एक और जो था कि मुसलमान और हिंदू का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो थोड़ी हद तक ठीक बात कही थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी इम्प्रूव हो रही है। क्या थी वो कि 84% जो हिंदू थे 1951 में, वो 2011 तक 79.8 यानी 4.2 घट गए। ना ये जो इनका रिडक्शन हुई, ये सिखों में, क्रिश्चियन में और मेनली मुसलमानों में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। मुसलमान 9.8 से बढ़ के 14.2 हो गए माना, लेकिन 60 साल में, 51 से 2011 तक 60 साल में 4 परसेंटेज पॉइंट मुसलमान बढ़े। तो 10% से 51% बनने के लिए 40 परसेंटेज पॉइंट इन्हें बढ़ना पड़ेगा।
तो अगर 60 साल में 4% बढ़े हैं तो 40% बढ़ने के लिए 600 साल चाहिए। अगर यही ट्रेंड चले जो अब तक शुरू में थी, अब तो वो कम होने लगी, तब भी 600 साल लगेंगे। अब उस 600 साल को ये कहेंगे बस ये आ गए, 2 साल में आ रहे हैं, 5 साल में आ रहे हैं, खबरदार हो जाओ, समझ जाओ, तो ये प्रोपेगेंडा है। तो इसको भी समझ, मैंने इसका एक फुल प्रूफ एक इलाज करा दिया। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े मशहूर वाइस चांसलर थे अभी 2-4 साल पहले तक। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि साहब मैं आपको अपना सारा डेटा भेज रहा हूँ, आप मेरा मैथमेटिकल मॉडल बना दो कि कितने साल में मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो उन्होंने मॉडल भेजा जो इसकी एनेक्चर 1 के बतौर इसमें मैंने छाप दिया है। उन्होंने कहा भूल जाओ, 600 साल में नहीं, 1000 साल में नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि उन्होंने एक ग्राफ इसमें बनाया कि 1951 में अगर मुसलमानों को मुकाबले में 30 करोड़ हिंदू ज्यादा थे, तो आज 80 करोड़ हिंदू ज्यादा हैं, और 50 साल बाद 100 करोड़ हिंदू ज्यादा हो जाएंगे। तो कहाँ मुसलमान उनको ओवरटेक करने जा रहे हैं, वो उसकी एब्सर्डिटी उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल में प्रोफेसर दिनेश सिंह ने ये लिखी है, जो इसको हमें पढ़ के इत्मीनान हो जाना चाहिए कि ऐसा खतरनाक बात नहीं है।